So, very good evening, all the participants. Before we start with this voluntary liquidation, let us briefly revise the concepts of fast track process. In fast track, there are basically four sections only: 55, 56, 57, 58. So, 55 says that CIRP carried out in accordance with this chapter shall be called as fast track corporate insolvency resolution process. So, first question: if you want to file an application under fast track, whether which application to adjudicating authority rules you will apply. Application to adjudicating authority rules. Whether there are separate rules for fast track or the same rules which are applicable for normal CIRP, they are applicable here also. नॉर्मल सीआईआरपी सर नॉर्मल रूल अप्लाई बिल्कुल सही है सर क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है इफ यू गो टू एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स यू हैव टू टिक कि अंडर विच चैप्टर यू आर डूइंग इट. ठीक है, तो वहां पर आपको देता है कि कौन सा चैप्टर, चैप्टर 2 पार्ट 2 में दे रहे हो आप, पार्ट 2 का चैप्टर कौन सा है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई. तो दे आर सेम फॉर्म्स. So only basically in fast track also only the financial creditors or operational creditors or corporate debtor can file the application. Whether next question, whether a public company can file this application under fast track process. यस Okay, where you will cover it? सर अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए बस. अनलिस्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है. अनलिस्टेड होगा तो हो जाएगा. अच्छा, सपोज देयर वाज ए पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, ए पार्टनरशिप फर्म वाज फॉर्म्ड इन 2010. जी सर. Now, later on, it was converted into a private limited company, जी सर. say in 2016. So, whether you can file an application under this fast track process. यस So, it is a startup. Whether any time limit is there for startups that they should not have been formed prior to this date? Sir, 7 years. 10 years सर. 10 years. 7 years. कुछ बोले हैं 7 years, कुछ बोल रहे हैं 10 years. 10 years है सर. ये नोटिफिकेशन है. टर्नओवर कितना है इसका? टर्नओवर कितना होना चाहिए स्टार्टअप के? 100 करोड़ सर. 100 करोड़. ठीक है, नॉट एक्सीडिंग. हाँ. अब आप ये देखिए, ये पढ़ा जा रहा है ना आपसे, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको. अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years. दिस इज द नोटिफिकेशन 19th February 2019. Latest notification on this. So an entity shall be considered a startup up to a period of 10 years from the date of incorporation or registration if it is incorporated as a private limited company as defined in the Companies Act or registered as a partnership firm or a limited liability partnership. Turnover for any of the financial years since incorporation or registration has not exceeded 100 crore rupees. Entity is working towards innovation, development or improvement of products or services, provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered as a startup. So they may give you a case study like this because they want to cover 10 years. So they might say that, okay, A and B started partnership business in the year 2014. So 2010 कह सकते हो आप. A and B started a business in partnership form in the year 2010. And they converted into a private limited company in the year 2015. ठीक है. Turnover for any of the financial years does not exceed 100 crore rupees. It is working towards innovation. So whether it can be covered under startup. So they may try to confuse you by giving two dates. So you have to see the date of incorporation as a private limited company or LLP and not the
start of business. An entity shall cease to be a startup on completion of 10 years from the date of its incorporation, registration, or if its turnover for any previous year exceeds 100 crore rupees. ठीक है, ये हो गया हमारा. So this is the notification. So 55. And what is the paid up capital limit for small company? स्मॉल कंपनी के लिए कितनी पेड अप कैपिटल है? एज पर आवर सिलेबस इट इज 4 crore to 40 crore. ठीक है, बिल्कुल सही. Okay. एंड बिसाइड्स दैट वी हैव टू सी दैट दिस clause does not apply to a holding company or a subsidiary company, section 8 company, a company or body governed by any special act. ठीक है, और फिर पब्लिक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए. तो स्मॉल कंपनी के लिए ये है. तो यू हैव टू सी द क्राइटेरिया अंडर विच यू आर ट्राइंग टू फिट इन, वेदर यू आर ट्राइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन एज ए स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी में ये वाले क्राइटेरिया देखने. ठीक है, अगर अनलिस्टेड कंपनी में जाते हो तो वो वाले क्राइटेरिया देखने हैं, और स्टार्टअप में जाते हो तो वो वाले क्राइटेरिया देखने हैं. ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया तो क्लियर है अब आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे हिसाब से. सर एक एक कंफ्यूजन है सर, ये स्मॉल साइज का स्मॉल कंपनी में टर्नओवर 2 करोड़ है या 100 करोड़ है? देखिए ऐसा है, स्मॉल कंपनी क्या बोलता है? स्मॉल कंपनी बोलती है, देखिए वी हैव टू रीड द एक्ट अलोंग विद द रूल्स. ओके. एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज. वो रूल्स बताते हैं. फिर यू हैव टू रीड द एक्ट अलोंग विद द रूल्स, एंड रूल्स कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. यस सर. तो तो जो अभी हमारे कितना है? सिलेबस में है, हमारे हाँ. सिलेबस में वो जो टर्नओवर है वो 40 करोड़. ओके ओके. बाद में उसके बाद चेंज हो चुकी है. तो सर ये 4 करोड़ और 40 करोड़ है ना? हमारे सिलेबस के हिसाब से 4 करोड़ और 40 करोड़. हाँ ठीक है सर, याद आ गया. ओके सर. ठीक है, ये भी हो गया. तो स्मॉल कंपनी क्लियर है. स्मॉल कंपनी में तो कोई डाउट नहीं है. No, sir. सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, कंपनी और बॉडी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट भी नहीं होनी चाहिए. टर्नओवर हो गया. स्टार्टअप वाला क्लियर है पॉइंट. ये स्टार्टअप का मैंने नोटिफिकेशन भी दे दिया इसके अंदर. टाइम पीरियड 90 days. अप्रूवल with a vote of 75% of voting share. One time extension not exceeding 45 days. 57. 57 says an application for fast track may be filed by a creditor or corporate debtor as the case may be, along with the proof of existence and such. ठीक है. And 58 says the process of conducting CIRP under chapter 2 and the provisions relating to offences and penalties under chapter 7 shall apply to this chapter as the context may require. ठीक है. अब अगर आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि वेदर इन फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन हो सकता है, तो क्या कहोगे आप? भाई वो तो ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे जो डायरेक्टली लिखे हुए नहीं है. हो सकता है सर. हो सकता है ना, क्योंकि सीआईआरपी वाले में वो प्रोविजन है. और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 इस पर अप्लाई होता है. कितने रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करने हैं इसके अंदर? एक. 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 ठीक है. एक बार हम ना वो चार्ट भी देख लेते हैं बिफोर वी मूव टू वॉलेंटरी लिक्विडेशन. एक बार वो ना एक्सेल वाला जो चार्ट था ना, हमने देखा था एक बार. लेट अस रिवाइज दैट चार्ट आल्सो फ्रॉम दिस फास्ट ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बीच बीच में उसको देखते रहेंगे ना तो थोड़ा सा सही रहेगा. और चेक भी हो जाएगा, कोई उसमें गलती तो नहीं है. हम्म, ये डेट्स वाला चार्ट आ गया. एक बार मैं इसको शेयर कर देता हूँ.
ये चार्ट है, ठीक है जी। पहली बात क्या लिखता है ये अपॉइंट, मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ, बाकी वाली चीजें सिर्फ फास्ट ट्रैक वाले को ही हम खोल लेते हैं। तो सारा ही हाइड हो गया क्या ये? अच्छा, ऊपर से हाइड करना था एक्चुअली मेरे को। ये पूरा ही हाइड हो रहा है, क्या चक्कर है? चलो कोई नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ कोई पेन से नहीं हो जाता। अब आ गया, अब ठीक है। हाँ जी, अब क्लियर नजर आ रहा है आपको ना? तो ये क्या कहता है? 90 days plus 45 days appointment of RP, creditor can submit proof of claim till the approval of resolution plan। एक तो ये पॉइंट है इसके अंदर। CIRP में क्या है बेसिकली? इन CIRP claims can be submitted till 90th day from the insolvency commencement date, otherwise you have to approach the adjudicating authority। Here the creditor can submit proof of claim till the approval of resolution plan by the committee। This is one change, ठीक है। Public notice within how many days? 3 days. 3 days। 3 days. And creditor to submit claims within how many days? 7 10 days. days, sir. 7 days. हैं? 10 days, sir. 10 days, है ना? RP to prepare list of creditors within how many days? 14 days. 7 days. 7 days from the receipt of claims, ठीक है। तो 3 + 7 + 7 17 हो गया। IRP has to file the report to the AA certifying constitution of COC before T + 21, 21. ठीक 21. है। Also, a fast track needs to be converted into CIRP। तो A based on the IRP report passes the order। ये विड्रॉल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लेम ये नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट COC मीटिंग कितने दिन में करनी है आपको? 7 days, sir. From 7 days of filing this report, Yes, ठीक yes. है। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स how many days? 7 days. Within 7 days. 7 days from the appointment of ठीक है। IP. और प्रेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक बार देखते भी रहिएगा उसमें। ये देखना इसलिए भी जरूरी होता है, कई बार क्या होता है कि वो पुराना चार्ट में पुराना लगा रह जाता है, इसलिए भी बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं। प्रेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब तक होगा ये? क्योंकि वहां तो चेंज हो गया था। 60 days, I think. अगर आप कर देखिए, रेगुलेशन नंबर है आपका 35। 35 says subject to sub regulation 4 the RP shall submit the information memorandum in electronic form to each member of the committee within 2 weeks of his appointment as RP to each prospective resolution applicant latest by the date of invitation for resolution plans under clause H of subsection 2 of section 25, ठीक है। तो ये बोलता है within 2 weeks from his appointment। तो क्या बोल रहे थे आप? 60 days क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, ये ठीक ही है ना? हाँ। ये आपका रेगुलेशन नंबर 35(1). इधर में चेंज नहीं हुआ, उधर में चेंज हो हाँ, गया। इधर में चेंज नहीं हुआ, हाँ यही ना। उसके बाद में आपका फॉर्म G इनवाइटिंग प्लान्स, ये कितनी देर में देना है आपको? इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स सबमिशन ऑफ प्लान्स के लिए मिनिमम आपको 15 days देने हैं टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इवेल्यूशन ऑफ प्लान्स OC टू बी पेड विद इन 30 days ऑफ द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम A। ये भी चेंज है यहाँ पर,
ठीक है, यहां पर क्या बोलता है, मैंडेटरी कंटेंट्स, प्रोवाइड फॉर सच पेमेंट। If we see regulation number 37, so regulation number 37 says liquidation value due to the operational creditors and provide for such payment in priority to any financial creditor, which shall in any event be made before the expiry of 30 days after the approval of a resolution plan by the adjudicating authority. ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये भी 30 हमें days. थोड़ा ध्यान में रखना। रेगुलेशन नंबर 37, resolution plan to contain details of the RA and connected persons, identity, conviction in last 5 years, criminal proceedings pending, disqualifications as a director, willful defaulter, debarment from SBI, SEBI, transaction with CD in last 2 years. ठीक है, ऑब्जेक्शंस इस पॉइंट पर हो सकते हैं। ठीक है, फाइनल लिस्ट ऑफ RA, कनेक्टेड पर्सन्स कौन से हैं, हु आर प्रमोटर्स, मैनेजमेंट और दे आर इन कंट्रोल ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, पर्सन हु विल बी द प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वो सब 29 वाला ही है। रेजोल्यूशन प्लान हैज टू बी सबमिटेड, है ना, टू द ए एटलीस्ट 15 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फास्ट ट्रैक पीरियड। डिस्कस विद COC ऑन प्लान्स, डेट्स ड्यू टू क्रेडिटर, इफ क्रेडिटर ट्रांसफर टू डेट देन, ये तो ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एप्लीकेशन टू प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये फास्ट ट्रैक वाला भी आपका ये है। ये लिख ही दिया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हो ही गया, एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये भी एक थोड़ा सा चेंज है, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, है ना, तो इस केस में क्या होगा, इट एप्लीकेंट हैज टू बियर दिस कॉस्ट, सो इट इज नॉट ए फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ चेंज है। COC मीटिंग में भी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर कितना है, 7 days नोटिस है, नॉर्मल CIRP में 5 days नोटिस है। 5 days. कोरम सेम ही है, 33%। सेल ऑफ एसेट्स ये भी हो गया, कॉस्ट ऑफ IRP, कॉस्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नॉट लेटर देन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। बस इतना ही है मेन इंपॉर्टेंट। तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में अगर आपका कोई और सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वॉलंटरी लिक्विडेशन पर चलते हैं। ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस हमारा, 1 मिनट, ये तो रेगुलेशन है सारे। अच्छा, ये कंपनी देखिए कि ये कंपनी क्या, वेदर इट विल बी एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक। ये कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अब ये बताइए इस कंपनी को देख करके कि भाई ये कंपनी जो है क्या एलिजिबल है फास्ट ट्रैक के लिए या नहीं, Eligible, sir. है जी। Eligible, sir. हम्म, अच्छा, an insolvency professional was an independent director of XYZ Private Limited 2 years ago.
Can you become a resolution professional of XYZ Private Limited? बोल सकता है यस सर? सर, यस सर। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में तो रिलेटेड पार्टी नहीं है ना। सर। ये सब देख लोगे आप, इसमें कोई खास बात नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म, ये इसके आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं इसके अंदर। हम्म। ठीक है जी, चलिए। सर हाँ जी। मैं बोल रही थी सर, आप एक बार, अब हमको बहुत स्ट्रेस आ रहा है, आप एक एक बार है ना सेक्शन, मतलब कुछ कुछ सेक्शंस के आप मॉक ले लो ना, एक बार मॉक टेस्ट। बिल्कुल कर देते, कर देता अभी हूँ। तो, हाँ सर, तो आप है ना चैप्टर वाइज देंगे ना, तो हम प्रिपेयर और अच्छे से हो जाएंगे। हाँ मतलब ठीक आप है, बोलेंगे सीआईआरपी का है तो सिर्फ सीआईआरपी, मैं फास्ट समझ ट्रैक। गया, मैं समझ गया। I'll try, definitely I'll try. थैंक यू सर। XYZ Private Limited started its operations in December 2014. It is registered as a startup with DIPP. Its turnover during the financial year 23-24 was 80 crores. Investment in plant and machinery 50 crores. It incurred a default of 2 crores. Based on the above fact, please answer the following questions. ठीक है, तो ये आपके पास फैक्ट्स है। टर्नओवर 80 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़। डिफॉल्ट 2 करोड़ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप है। ठीक है जी। क्या क्या ऑप्शंस है? क्या प्री पैक में जा सकती है ये कंपनी? प्री पैक में जा सकती है क्या? नहीं, मिनिमम की, हाँ, जाती है, मिनिमम डिफॉल्ट की है, मैक्सिमम तो कुछ नहीं। जा सकते हैं सर। है ना भाई? एमएसएमई में जी सर। एमएसएमई क्राइटेरिया कितना है आपका? सर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 और 50 250 करोड़, सर। 50 करोड़ और टर्न ओवर 250 करोड़। हाँ तो बस ठीक है, तो 50-250 से तो कम ही है। यस, यस सर। है ना? इन्वेस्टमेंट 50 है और टर्नओवर यस भी सर। 250 से कम है। जी सर। और फास्ट ट्रैक में? फास्ट ट्रैकिंग जा सकते हैं। जा सकते 10 साल से कम है सर। 10 ईयर, अभी 10 ईयर में है ना। बिल्कुल सही है ना? फास्ट ट्रैक में भी जा सकती है। और सीआईआरपी में? जा सकती है, 2 करोड़ जा है। सकते हैं, जा ही सकते हैं सर, दोनों जा सकते हैं। है ना? तो एक मिनट, क्या होगा? ये था ना, तो ये किसी में भी जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर फास्ट ट्रैक। इन्होंने सोचा भाई फास्ट ट्रैक में फाइल कर देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन? कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है? Proof of serving copy to corporator. Serving, भाई सबसे पहली बात तो ये कि फॉर्म कौन सा फाइल करेंगे। ये फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे एप्लीकेशन के लिए? फॉर्म नंबर 6 से जाएगा नेचुरली, है ना? क्योंकि सेक्शन 10 से रिलेटेड सेक्शन हो गया ना। तो सेक्शन 10 वाला फॉर्म कौन सा है? 6 वाला फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6 है। तो फॉर्म नंबर तो 6 हो गया। और वो कह रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना जरूरी नहीं है इसके अंदर, ये पूछ रहा है। बी सर, वो खुद ही अप्लाई कर रहा है सर, तो उसको सर नोटिस सर की जरूरत नहीं है। हम्म सर कोई सेक्शन 10 में अप्लाई कर रहा है, तो सीडी अप्लाई कर रहा है, तो उसको नोटिस कुछ। सर कोई भी जरूरी नहीं है, नन ऑफ द अबव। None of those. Yes, sir. D. None of the above. None of those. भैया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट नहीं लगाओगे क्या? तो फिर सब सारे ही जरूरी है, प्रूफ ऑफ सर्विंग अ कॉपी टू सीडी हम्म और प्रूफ ऑफ सर्विंग अ कॉपी टू बोर्ड, ये भी जरूरी है, बिकॉज बोर्ड नीड टू बी इन्फॉर्म्ड।
इसके लिए मैं आपको क्या वो करता हूँ, मैं आपको ना सीधा एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स पे ले चलता हूँ, ओके वहां पता चलेगा क्या है क्या नहीं। एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग, सर एक मिनट सर, नन ऑफ द अबव मतलब हुआ कि कोई भी आंसर नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब तो सभी जरूरी है ना, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट भी जरूरी है, सीडी, हम्म। सीडी और बोर्ड वो भी जरूरी है। मैं एक बार फॉर्म नंबर 6 देख लो ना, तो क्लियर हो जी जाएगा। सर, यस सर। ये एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स हैं, फॉर्म 6। मैं इसको शेयर करता हूँ। ये फॉर्म नंबर 6 आ गया आपका। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये फॉर्म नंबर 6 नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, है ना? अब इसके साथ में वो कहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, ये लगाने हैं आपको। प्लीज अटैच द फॉलोइंग, ठीक है? अब यहां पढ़ लीजिए। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। हाँ, अगर फाइनेंशियल डेट है तो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट लगाना है आपको, ऑपरेशनल डेट है तो ये लगाना है, रिटर्न कम्युनिकेशन लगाना है, कॉपी ऑफ रेलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एंड द प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेड अप टू डेट नॉट अर्लियर देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये भी लगाना है आपको। A copy of relevant extract of any constitutional document, affidavit in support of the application, proof that the specified application fees has been paid, proof that a copy of the application has been served to the board। ये सारी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, तो प्रूफ ऑफ सर्विंग टू द बोर्ड भी लगाना है, ठीक है? प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट भी लगाना है, ये सारी चीजें लगानी है। तो ऐसा पूछ सकता है आपसे सवाल, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा सवाल नहीं है ये। तो ये फॉर्म नंबर 6 देख लिया, इसका पर्पज ये है कि आपसे इस टाइप के सवाल भी वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। आप ये नहीं कह सकते भाई ये कोई सिलेबस से बाहर पूछ लिया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये तो कॉमन सेंस पे रिप्लाई करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज इतना डिटेल तो सर कैसे याद रहेगा हर फॉर्म का। सर डी डी में ही आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। नहीं, नन ऑफ द भैया अबव देखो, आएगा ना, देखो क्योंकि कॉमन क्वेश्चन, सेंस अगर लगाओगे ना पर तो सर आप इसमें देखो बी ना, आना चाहिए। नहीं सर डी आए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन तो नेगेटिव क्वेश्चन है ना, नॉट अ हाँ तो मैंडेटरी नेगेटिव है ना, क्वेश्चन। तो सीडी ही तो एप्लीकेशन लगा रहा है, तो सीडी अपने आप को ही थोड़ी कॉपी दे। कैंसिल थोड़ा करेगा अपने आपको, नोटिस कैंसिल करोगे? अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो बी आंसर कर दोगे भाई। एक्स वाई जेड हम्म। लिमिटेड खुद ही तो एप्लीकेशन लगा रहा है, तो अपने आप को ही थोड़ी कॉपी देगा जी जी। ये। बहुत ट्रिकी है सर, मैं एग्जाम का स्लॉट ही नहीं भर पा रही हूँ, इतना डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं। बाय व्हाट डेट कैन द एप्लीकेशन बी फाइल्ड, कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी है आपको? 14 days। जी सर। हाँ ये तो सिंपल ही रहेगा, है ना? लिमिटेशन पीरियड में फाइल करनी है। यस सर। कैन ए सीआईआरपी एप्लीकेशन भी कन्वर्टेड इनटू फास्ट ट्रैक, सीआईआरपी वाली हो सकती है क्या फास्ट ट्रैक में? उसमें तो लिखा नहीं सर ऐसा। हाँ ऐसा नहीं है, बट फास्ट ट्रैक कैन बी कन्वर्टेड इनटू यस सीआईआर, सर। है ना? तो आंसर सी हो जाएगा, नो, बट वाइस वर्सा इज पॉसिबल। सपोज इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सीआईआरपी, इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन अंडर कौन से सेक्शन की एप्लीकेशन मान ली जाएगी ये?
7 सर। लिखा हुआ कहीं बात है? इन हाँ 10 सर, में वही कुछ हाँ? 10 10 10 का होगा ना, सेक्शन 10 10 में जाएगा सर। बाय सीडी, एप्लीकेशन बाय सीडी। वो देखो, वो पीपीआईआरपी में है। पीपीआईआरपी में क्या कहता है कि अगर पीपीआईआरपी सीआईआरपी में कन्वर्ट हो जाए 54O, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। यहां पर तो एप्लीकेशन फॉर्म ही सेम है, सीआईआरपी और फास्ट ट्रैक का फॉर्म नंबर सेम ही है। तो अगर सीडी लगाएगा तो फॉर्म नंबर 6 में लगाएगा। वो सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन मान ली, सेक्शन 10 मतलब वही फॉर्म नंबर 6 ही रहेगा। लिखा है क्या फास्ट ट्रैक में कुछ ऐसा? नहीं, कन्वर्जन की तो बात ही नहीं सर, इसमें तो वो वही फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, हाउ मेनी रजिस्टर्ड वैल्यू, ये तो मालूम ही है ना, फास्ट ट्रैक में एक ही करना है आपको, 1 है ना। इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स हैज टू बी गिवन बाई, कितने दिन में देना है? अभी पढ़ाई था हमने, किस इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स। T+21। ये उसमें तो सीओसी बनानी है, उसमें सीओसी को सर्टिफाई करनी है। ये अभी पढ़ ही रहे थे ना हम सर, लोग। 2 वीक लिखा था सर। लास्ट डेट, लास्ट डेट। अच्छा, रेगुलेशन 35A1 पढ़ लीजिए। ओके, 15 डेज पर। एटलीस्ट 15 days बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ यस सर। 35A1 में। तो आंसर इसका ये हो जाएगा सी, है ना। तो रेजोल्यूशन प्लान कब तक सबमिट करना है सर उसको? वो कहता है 15 दिन छोड़ दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो 90 और 45, 135 में खत्म करना है, तो हाँ, 75 दिन 90 कर देगा, दिन, 75वें दिन कर देगा ना। एक्सटेंशन को छोड़ के। हाँ, इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हैज टू बी गिवन बाई, ये तो अभी किया ही था। ये है सर। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान? लास्ट डेट फॉर अप्रूवल क्या है? रेगुलेशन 38 के अंदर दिया हुआ। ये कहता है, अगर हम 38 पढ़ें, ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट shall submit resolution plans prepared in accordance with the code and regulations to the RP within the time given in the invitation made. The resolution professional shall submit to the committee all resolution plans and committee may approve. 38 में 4 दे रखा है। The resolution professional shall submit the resolution plan approved by the committee to the adjudicating authority at least 15 days before the expiry of the maximum period, जो आप पूछ रहे थे अभी, permitted under section 56। तो ये क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान? अप्रूवल किसके द्वारा, कौन करेगा अप्रूवल? अगर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहें तो 90 डेज हो जाएगा। और अप्रूवल बाय सीओसी अगर हम कहें, अप्रूवल बाय सीओसी कर लो इसको, इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, लास्ट डेट फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी, ऐसा कर लेते हैं। तो क्या रहेगा आंसर इसका? 75 days। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये है 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ RFRP, रेगुलेशन 40B ऑफ CIRP रेगुलेशंस। इसका आंसर हम कर देते हैं 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी कंटेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान? कौन सा चीज मैंडेटरी नहीं है?
इसमें क्या है, बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपको देने, तो सिविल प्रोसीडिंग्स की डिटेल देनी जरूरी नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नीड नॉट बी शेयर विद, किसके साथ शेयर नहीं करना है आपको, जरूरत नहीं है। रजिस्टर वैल्यू सर। आईबीबीआई पहले तो ये देखो लिखी कहाँ है बात ये। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमारा हो गया 35। आईबीबीआई को देना जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी शेयर बिल्कुल सही। विद। अब आप ये देखो, आपको ना हिंट दिया हुआ है, ये खैर ये तो उसके बारे में है। ईच मेंबर ऑफ द कमिटी देना, ईच प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। The resolution professional shall share the information memorandum after receiving an undertaking from a member of the committee or a prospective resolution applicant. सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना है आपको। सर देना है, बिकॉज दे आर स्टिल हाँ रेलेवेंट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ठीक एंड है, क्लैरिफिकेशन। और रजिस्टर्ड वैल्यूअर को। यस सर, टू कंडक्ट वैल्यूएशन। नहीं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से वैल्यूएशन करेगा वो। वैल्यूएशन तो पहले होती है सर। इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ना सर उसको, तो वैल्यूएशन में हेल्प तो मिलेगी। ऐसा मैंने एक मॉक टेस्ट एक दिया था, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन था सेम। ओके, डी का आंसर क्या है टेंथ बताइए का सर आंसर आप। क्या दिया है? टेंथ का आंसर ए बी एंड डी। जी। ए बी एंड डी। ए इसी को जाएगा, इसी को जाएगा, इसी को जरूरत नहीं। नहीं, नीड नॉट बी शेयर्ड। And that will be distributed among the member of COC on this side. हाँ। आंसर ठीक ही है। ठीक है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सर वोटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे बैठते हैं वहां पर। सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, आईबीबीआई को, तीनों ही पकड़ जाएगा। मेंबर्स ऑफ सीओसी को ही देना है। अगर आप रेगुलेशन 35 पढ़ो ना, उसमें भी एक बात क्लियर लिखी है, क्या बोलता है, मेंबर्स ऑफ सीओसी ही लिखता है, वैल्यूअर को देना जरूरी नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, देख लेते हैं। सुमित एंड विवेक आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो थोड़ी स्टोरी तो वैसे बना देते हैं, इसका कई सारी जरूरत भी नहीं होती। मेन बात ये देखते हैं, दे स्टार्टेड द बिजनेस एज एसवी एलएलपी एंड गॉट इट रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप इन द ईयर 2020। ठीक है, मतलब हमें देखना है 10 साल पुरानी तो नहीं है, 10 साल से ज्यादा पुरानी तो नहीं है, ठीक है बस। और इनका डिफॉल्ट कितना है, देर वॉज अ डिफॉल्ट ऑफ मोर देन 1 करोड़। ठीक है, तो मोर देन 1 करोड़ है तो सीआईआरपी में जा सकता है, फास्ट ट्रैक में जा सकता है ना। और अब चलिए, अब ये कहता है कि भाई आप ये बताओ कि किस किस सीआईआरपी में जा सकती है ये कंपनी। यस। एक मिनट, सीआईआरपी में तो इशू नहीं होना चाहिए, है ना, सीआईआरपी में तो जा ही सकती है। और फास्ट ट्रैक में, यस। फास्ट ट्रैक में भी जा सकती है ना। फास्ट ट्रैक में क्योंकि स्टार्टअप है, 10 साल हुए नहीं है अभी, है ना। और टर्नओवर कितनी है, टर्नओवर लिखी नहीं है अभी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पीपीआईआरपी में जा सकती है, नहीं जा सकती है। नहीं। पीपीआईआरपी में क्या दिक्कत है। एमएसएमई चेक करना सर बस उसमें तो। हाँ वो हाँ। है। हम्म।
In case the default occurred during pandemic period, can application for fast track be filed? अगर डिफॉल्ट आपका पेंडेमिक पीरियड में हो मान लो, जी सर। तो उस केस में फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन लग जाएगी क्या? नहीं नहीं लग जाएगी सर। नहीं। सेक्शन 10 ए पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ 10A में है। तो सेक्शन 10 ए क्या बोलता है? सेक्शन 10 ए इसका आंसर देगा। हाँ दोनों ठीक है मैं समझ गया। अगर सेक्शन 10 ए में फास्ट ट्रैक लिखा है तो नहीं लगेगी। पेंडिंग इसमें Suspended इसमें the initiation of CIRP for defaults occurring on or after March 25, 2020 for a period of 6 months or such further period not exceeding 1 year, as may be notified. उसमें वो भी एप्लीकेशन नहीं लगेगी, फास्ट ट्रैक भी नहीं लगेगी। Suppose the default occurred in respect of some other transaction after pandemic, that is on 28th March 2021, 28th को भी हो गया, तो फिर एप्लीकेशन फाइल हो सकती है क्या? Yes. फिर हो सकती है। मतलब अगर पेंडेमिक पीरियड के बाद में डिफॉल्ट है फिर तो हो सकती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। हु कैन फाइल द एप्लीकेशन? कौन फाइल कर सकता है? D. Corporate debtor and creditor. पब्लिक अनाउंसमेंट कितने दिन में करनी है आपको? विद इन 3 3 days, days. 3 है ना? days. Father-in-law of maternal uncle of Sumit is a registered valuer. Can he be appointed as a registered valuer? No. Yes. Yes. Father-in-law of maternal uncle है। अच्छा maternal uncle. Oh sorry sorry. मैटरनल अंकल तो नहीं हो सकता, उसका फादर इन लॉ हो हाँ. सकता। Okay. मिस्टर जय सोनी वॉज अपॉइंटेड एज द IRP। इन हाउ मेनी डेज क्लेम्स हैव टू बी इनवाइटेड? क्लेम्स तो 10 दिन में 10. है ना। 10. स्टूडेंट्स हैव डिपॉजिटेड फीस, इन विच फॉर्म दे शुड अप्लाई? Operational creditor. ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये सारी टाइमलाइंस ही हैं, कोई खास बात नहीं है। टाइमलाइंस यू कैन सी। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अच्छा ये तो फिर लिक्विडेशन से रिलेटेड आ गए ना, तो लिक्विडेशन वाला तो हमने कर भी लिया वैसे, है ना। वहां से आप देख लोगे, कोई खास बात नहीं है। चलिए छोड़िए, अब इतना काफी है। अब इससे आइडिया आपको लग जाएगा। नाउ लेट अस गो टू दी वॉलेंट्री, उस पे चलते हैं हम लोग अपना, वॉलेंट्री लिक्विडेशन पे, सेक्शन 59 पे चलते हैं, है ना। तो एक बार सेक्शन 59 पे चले हम लोग। वॉलेंट्री फोर्स, वॉलेंट्री लिक्विडेशन, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बेयर कोड वाली, ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ठीक है जी। वॉलंटरी लिक्विडेशन।
वॉलंटरी लिक्विडेशन में देखिए दो तीन बातें मेजर है बिफोर वी स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट। ठीक। तो अभी तक जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े, चाहे CIRP पढ़ा, फास्ट ट्रैक पढ़ा, PPIRP पढ़ा, सब में क्या है, डिफॉल्ट होना चाहिए। कहीं पर 10 लाख है मिनिमम, कहीं पर 1 करोड़ है। CIRP और फास्ट ट्रैक में 1 करोड़ है, PPIRP में 10 लाख मिनिमम। यहां पर क्या है, पहली कंडीशन ये है कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। A corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default, तो सबसे पहली बात, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मान लो 5 साल पहले डिफॉल्ट हुआ था, उसके बाद डिफॉल्ट सही हो गया, तो अब कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा सकती है या जा ही नहीं सकती? भाई ये कंपनी 20 साल पुरानी है, 5 साल पहले कोई डिफॉल्ट हुआ था, दैट डिफॉल्ट वाज मेड गुड, नाउ द कंपनी वांट्स टू गो इन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, कैन इट गो इन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन? या वर्ड एनी लिखा हुआ है तो कभी भी नहीं जा सकेगी, एक बार डिफॉल्ट हो गया तो कभी भी नहीं जा सके, ऐसा है क्या? इट कैन, है ना? तो ऐसा नहीं है, एनी का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कभी भी हुआ हो तो नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। आज की डेट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, इट इज नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट, may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. There are 3-4 peculiar things about voluntary liquidation. पहली बात, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इंटरफेरेंस ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज मिनिमम। तीसरी बात, फॉर मोस्ट ऑफ द एक्शंस CD is responsible and this liquidator will also report to the CD, जैसे for all the reports, so he will be submitting all the reports to the CD, है ना? Board will not be suspended during voluntary liquidation. सिर्फ there are only glaring circumstances in which the voluntary liquidation can file an application to the adjudicating authority. उस केस में if it is being done with the intention to defraud any person, ठीक है, तभी वो adjudicating authority को एप्लीकेशन लगा सकता है। नॉर्मली CD is responsible for appointment of the liquidator, CD is responsible for mode of sale वगैरह सब कुछ। ठीक है, a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. The voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirements as may be specified. Regulations. Without prejudice to subsection 2, voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company, यहां पर क्या लिख दिया, वर्ड लिख दिया कंपनी, तो क्या LLP पर एप्लीकेबल नहीं है? इट इज एप्लीकेबल, लेकिन वो बात कहां लिखी इन्होंने, रेगुलेशंस पे लिखी, यहां लिख दिया एज ए कंपनी। सबसे पहली बात, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। अब ऐसी ही बात हमने PPIRP में भी पढ़ी थी ना, PPIRP में कि डिक्लेरेशन। तो आप ये बताइए कि वहां का डिक्लेरेशन PPIRP वाला और ये वाला डिफरेंट है या सेम है? भाई यहां पर क्या है, यहां कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा इन्होंने डिक्लेरेशन का। इन्होंने ये कह दिया कि एफिडेविट से वेरीफाई कर दोगे, और वहां क्या है, वहां अपने फॉर्मेट है ना। P6 से कौन सा फॉर्म है? तुम्हें को पानी होती है वीरेन जी? सर P6 है सर, हाँ, वहां पर P6, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर एंड यहाँ कोई पार्टनर्स फॉर्म मेजॉरिटी। वॉर्म नहीं दे रखा है इन्होंने डिक्लेरेशन का। यहाँ क्या कहता है कि भाई एफिडेविट से वेरीफाई कर, ये डिफरेंस है। That they have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that either the company has no debt, इसका मतलब क्या, अगर डेट है तो क्या, तो भी कंपनी जा सकती है वॉलंटरी लिक्विडेशन में, जा सकती है, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, that either the company has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in voluntary liquidation। ठीक है, या तो डेट ही नहीं है, या अगर डेट है भी तो वो दे देंगे। एंड द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। द डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं?
एक तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस 2 years और फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, मतलब अगर 1 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो 1 साल के लगाने, अदरवाइज 2 साल के लगाने। ठीक है, a report of the valuation of the assets of the company, if any, prepared by a registered valuer। ठीक है, वो क्या कहता है? ए रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, इफ एनी, प्रिपेयर्ड बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। Within 4 weeks of a declaration under sub clause A, there shall be। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एक डिक्लेरेशन लगा दिया। डिक्लेरेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा दिए? ये डॉक्यूमेंट लगा दिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट। एंड विद इन 4 weeks of the declaration there shall be a special resolution of the members of the company in a general meeting। एक special resolution requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as the liquidator। उसमें क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई कंपनी हैज टू बी लिक्विडेटेड एंड अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसका मतलब लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट कर रहा है? यहां अपॉइंट कर रहे हैं members of the company in a special resolution or a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its articles। Sometimes you provide in the articles that okay, this company we are forming for a specific duration, or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved। ठीक है, that event could be say completion of a project, that could be so many things। So based on that, it may be provided in the articles that okay, the company shall stand dissolved। So here in that case a resolution, that means ordinary resolution। नॉर्मली क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई फिक्स्ड पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है, या ये लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ एनी on the occurrence of any event the company shall stand dissolved, तो उस केस में रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, provided that if the company owes any debt to any person, creditors representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed under sub clause C within 7 days of such resolution। ठीक है, तो अगर क्रेडिटर भी हैं तो 2/3 इन वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी दे शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन। वो उनको क्या करना है? अप्रूव कर रहा है रेजोल्यूशन विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। तो क्या क्या चीजें हो गई? डिक्लेरेशन हो गया बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दिया आपने फॉर द प्रीवियस 2 years, रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन लगा दी, और विद इन 4 weeks डिक्लेरेशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन पास कर दिया। तीसरी चीज, अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स ने भी उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया। क्रेडिटर्स रेजोल्यूशन नहीं पास कर रहे, दे आर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन पास्ड अंडर सब क्लॉज सी। अब आप कहोगे अगर क्रेडिटर्स ही अप्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो नहीं होगा वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द बोर्ड। कंपनी ने किसको इन्फॉर्म करना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और बोर्ड को। ए को नहीं इन्फॉर्म करना है इस स्टेज पे। अभी आप देखिए ए का नाम भी नहीं आया अभी तक जितना हमने पढ़ा वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, अबाउट द रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 3 टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द क्रेडिटर्स एज द केस में भी। तो इनको आरओसी को या आरओसी और बोर्ड को इन्फॉर्म करना है अबाउट द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में कौन सी रेजोल्यूशन है? वही रेजोल्यूशन, स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर्स अंडर सबसेक्शन 3 द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड। मतलब यहां पर एक डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट कौन सी है? वो डेट वो है जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3। यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है
कि भाई डेट ऑफ अप्रूवल बाय क्रेडिटर्स है या डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, तो ये डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर क्रेडिटर्स नहीं अप्रूव करेंगे तो वॉलंटरी लिक्विडेशन होगा ही नहीं, है ना। तो डीमिंग फिक्शन में द वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट इज द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। The provisions of sections 35 to 53 of chapter 3 and chapter 7 shall apply to voluntary liquidation proceedings। बोल रहा है 35 to 53, मतलब 33 34 अप्लाई नहीं हो रहे वॉलंटरी लिक्विडेशन में, ध्यान रखिए 35 to 53 अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मॉरिटोरियम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। Where the affairs of the corporate person have been completely wound up and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority। तो लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा तो लिक्विडेटर एक एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर अंडर सबसेक्शन 7 पास एन ऑर्डर दैट द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व्ड फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर। ठीक है, and the corporate debtor shall be dissolved accordingly, and a copy of an order under subsection 8 shall within 14 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the corporate person is registered। ठीक है, तो ये वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस। अब एक बार इसके रेगुलेशंस भी देख लेते हैं। रेगुलेशन में लास्ट अमेंडमेंट हुई है 16/9/22 को। इनिशिएशन ऑफ डिक्लेरेशन, सब रेगुलेशन 3 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। क्या बोलता है, विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 59(2)। जब हम 59 पढ़ रहे थे तो 59 में क्या बोल रहा था वो, 59 में बोल रहा था कंपनी के बारे में बोल रहा था एक्चुअली। ठीक है, तो हमें हैरानी हो रही थी कि भाई वहां एलएलपी की बात क्यों नहीं करता। वो ये कहता था 59(3) अगर हम पढ़ें तो वो बोलता था विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 2 वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। तो कंपनी की बात तो बता दी सेक्शन में, और एलएलपी की बात बता दी यहां पर। ठीक है, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इफ ए कॉर्पोरेट पर्सन इज ए, भाई 3 तरह से हो सकती है, या तो कंपनी होगी, कंपनी के बारे में 59 में पढ़ लिया हमने। अगर एलएलपी है तो कौन से होंगे इसमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहां भी डिफरेंस है, यहां क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जबकि पीपीआईआरपी में क्या है, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। ये फर्क है, वहां पार्टनर्स है, यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। वॉलंटरी लिक्विडेशन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग द गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अदर कॉर्पोरेट पर्सन। अगर कोई अदर कॉर्पोरेट पर्सन है अदर देन कंपनी और एलएलपी, तो उसमें इंडिविजुअल्स जो विच आर कॉन्स्टिट्यूट द गवर्निंग बॉडी, तो उस केस में डिक्लेरेशन उनका चला जाएगा, मेजॉरिटी का। ठीक है, as the case may be verified by an affidavit stating that they have made a full inquiry into the affairs of the corporate person and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in liquidation, and the corporate person is not being liquidated to defraud any person। और डिक्लेरेशन के साथ में क्या लगाना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन, और विद इन 4 वीक्स आपको क्या करना है, एक रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटरीज एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन रिक्वायरिंग कॉर्पोरेट पर्सन, और ए रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटरीज एज द केस में बी रिक्वायरिंग कॉर्पोरेटर। ठीक है, तो अगर कोई फिक्स्ड है, मतलब एलएलपी अगर इफ इट इज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेजोल्यूशन पास करनी है, अदरवाइज रेजोल्यूशन पास करनी है विद ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कॉर्पोरेट पर्सन वाज इन डेट टू एनी पर्सन, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन। वो जो 59 में हम पढ़ रहे थे, दोबारा यहां लिख दिया। 59 में कंपनी के बारे में लिखा और यहां पर लिख दिया एलएलपी और अदर कॉर्पोरेट पर्सन के, और इन ये बता देंगे किसको, रजिस्ट्रार और बोर्ड को, विद इन 7 डेज। सब्जेक्ट टू अप्रूवल, डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, क्या लिखता है ये भी,
यहां पर भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशंस 1 to 3 ए कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी। अब कई लोग पूछते हैं कि जी कॉर्पोरेट पर्सन में क्या कंपनी इंक्लूडेड नहीं है? वो कह रहा है फॉर द पर्पजेज ऑफ सब रेगुलेशंस 1 to 3, सिर्फ इन रेगुलेशंस के लिए कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी है। क्यों? क्यों कंपनी की बात तो हम 59 में ही बोला है ना? तो यहां पर जो बात कर रहा है, यहां कॉर्पोरेट पर्सन जो लिखा है वो कहता है कि इट इज अदर देन ए कंपनी। ठीक है। द डिक्लेरेशन अंडर सब रेगुलेशन 1A or under section 59(3)(a shall list each debt of the corporate person। ठीक है। जो डिक्लेरेशन के अंदर क्या जाएगा? डिक्लेरेशन में ईच डेट जाएगा as on that date and state that the corporate person will be able to pay all its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation। The declaration under sub-regulation 1A or under 59(3)(a shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution। तो डिक्लेरेशन में ये सारी बातें होनी है। क्या क्या बातें होनी है? पहली बात कि इट इज बीइंग वॉलंटरली लिक्विडेटेड, है ना? देयर इज नो इंटेंशन टू डिफ्रॉड। लिस्ट जाएगी पूरे डेट्स की, ठीक है, एंड दैट इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल, और इट हैज मेड प्रोविजन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड्स आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। ये भी डिक्लेरेशन में जाना है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन क्या है? द कॉर्पोरेट पर्सन शैल फ्रॉम द लिक्विडेशन commencement date cease to carry on its business except as far as required for the beneficial winding up of its business। ठीक है। And notwithstanding the provisions of subsection 1, the corporate person shall continue to exist until it is dissolved। ठीक है। तो जब तक डिसोल्यूशन नहीं होता तब तक it will continue to exist। अब एक और सवाल उठता है कि भैया वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी क्या सेल एज ए गोइंग कंसर्न हो सकती है? तो क्या कहोगे आप? वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या सेल एज ए गोइंग कंसर्न हो सकती है? नो सर। नो, बिकॉज इसका तो पर्पज ही वाइंडिंग अप है ना बेसिकली। इसका पर्पज कंटिन्यूएशन नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, whether this appointment needs to be told to the adjudicating authority, the answer is no। who will appoint the liquidator? corporate person। ठीक है, हमने पढ़ा ना, कॉर्पोरेट पर्सन। वेदर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या रेजोल्यूशन चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, वेदर यू वांट स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन? नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन। इन केस the company has been formed or the corporate person has been formed for a specific duration, है ना, तो उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो एक ही रेजोल्यूशन में दोनों बातें हो जाती हैं, फॉर अप्रूवल ऑफ दिस वॉलंटरी वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। ठीक है। सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 6, द कॉर्पोरेट पर्सन शैल अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर एंड वेयरएवर रिक्वायर्ड में रिप्लेस। रिप्लेस भी कौन करेगा? कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है। Provided that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him। और बताना किसको है? बोर्ड को बताना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना है? नहीं, अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता ही नहीं कि आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू हो गया है, उसको नहीं पता अभी तक। The insolvency professional shall within 7 days of his appointment as liquidator intimate the board about such appointment। बोर्ड को बताएगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, ठीक है, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर सिर्फ जो परसेंटेज वाला ही हमें ध्यान में रखना है वो 10%। लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, द रिम्यूनरेशन पेबल टू द लिक्विडेटर शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। ये लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग किसको करनी है? रिपोर्टिंग करनी है सीडी को। ठीक है। द लिक्विडेटर, इसको नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करनी। द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एंड सबमिट एक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स,
and final report in the manner specified under these regulations. ठीक है. Subject to other provisions of these regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to in sub-regulation 1 available to a stakeholder in either electronic form or physical form on receipt of an application in writing, cost of making, and an undertaking regarding confidentiality. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किसको देनी है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कॉर्पोरेट पर्सन को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं दे रहा. ठीक है. कितने दिन में देनी है? विद इन 45 days फ्रॉम द लिक्विडेशन commencement. Detailing the capital structure of the corporate person, estimate of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date, based on the books of the corporate person. Provided that if the liquidator has reason to believe to be recorded in writing that the books of the corporate person are not reliable, तो फिर reliable data estimate से देते. Whether he intends to make any further, देखो लिक्विडेशन से मिलती जुलती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. ठीक है. सिर्फ ये है कि ये कॉर्पोरेट पर्सन को दे रहा है, वहां पर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देता है ना. और वहां पहली रिपोर्ट कितने दिन में देता है वो? 75 days में ना. लिक्विडेशन में जो नॉर्मल लिक्विडेशन होता है उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कितने दिन में दी जाती है? हाँ जी, 75 days है मेरे हिसाब से. क्यों है? नहीं बोलते क्यों नहीं? बीच बीच में चुप हो जाते एसेट मेमोरेंडम जाता है सर वहाँ. हैं. एसेट मेमोरेंडम जाता है 75 में. नहीं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कितने दिन में जाती है? जाती है ना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की? नहीं जाती? 13 नंबर रेगुलेशन विद इन 75 days लिक्विडेशन प्रोसेस का रेगुलेशन नंबर 13. एसेट मेमोरेंडम भी है, वो भी है, दोनों ही है. चलिए. Whether intends to make any further inquiry, proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timelines within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation. ठीक है. उसके बाद में रजिस्टर्स एंड बुक्स. अगर बुक्स कंप्लीट नहीं है तो इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा. टाइम पीरियड है विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड. इसको कंप्लीट करा लेनी है विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड. ठीक है. और लिक्विडेशन में कितना पीरियड है? 1 साल का. नहीं, लिक्विडेशन में बुक कंप्लीट करने के लिए अगर बुक्स कंप्लीट नहीं है जी सर. तो वो कितने दिन में कंप्लीट करनी है? हाँ तो 14 days सर. हाँ जी, 14 days ना. 14 days में कहाँ से हो जाएंगी? वो तो लिक्विडेटर अपने बुक्स दिखेगा 14 डेज में तो वहां पर. सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर एंड बुक्स आर नॉट कंप्लीट, तो कोई पीरियड है क्या विद इन विच यू हैव टू गेट देम कंप्लीटेड? ये आपको रेगुलेशन कहाँ पर मिलेगा? रेगुलेशन नंबर मिल जाएगा 6 में. वहां पर भी वही लिखा है, ऑल कन्वीनियंट स्पीड. रेगुलेशन नंबर 6 यहाँ पर भी वही है. द लिक्विडेटर शैल मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स एंड बुक्स. ये सारे बुक्स और रजिस्टर्स इसको मेंटेन करने हैं. ठीक है. एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, तो लिक्विडेटर में एंगेज प्रोफेशनल्स टू असिस्ट हिम. ठीक है. चलिए, ये भी हो गया. इसमें कोई खास बात नहीं है. कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स. द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेड under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator. The liquidator shall maintain the particulars of any consultation. Extortionate credit transactions. Public announcement. Public announcement आपको करनी है विद इन 5 days और ये पेपर में होनी है. ठीक है. लास्ट डेट कितनी है? 30 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट. 1 English and 1 regional language newspaper on the website if any of the CD, on the website if any designated by the board. Proof of claim. ठीक है. Operational creditors form B, financial creditors form C, claims by workmen and employees form D, और representative of workmen employees form E. ठीक है.
एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ कि द लिक्विडेटर शैल एडमिट, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय क्लेम ही नहीं करता तो क्या होगा? द लिक्विडेटर शैल एडमिट द क्लेम्स ऑफ ए वर्कमैन और एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इफ सच वर्कमैन और एम्प्लॉय हैज नॉट मेड अ क्लेम। अगर उसने क्लेम नहीं किया तो ये बुक्स के बेसिस पे उसका क्लेम एडमिट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर्पज क्या है? यहाँ पर्पज ये नहीं है कि भाई किसी का क्लेम दो मत दो, यहाँ सबके पैसे देने हैं इन्होंने। क्लेम्स बाय अदर स्टेक होल्डर्स, फॉर्म एफ। प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला तो सेम ही है जो आपका नॉर्मल लिक्विडेशन में है कि द एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में बी प्रूव्ड। वो वहां से या तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड से, या एमसीए, या सरसई से। प्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सब्सटेंशिएशन, ये सारा ठीक है, इसमें खास बात नहीं है। डिटर्मिनेशन, ये सब जो सीआईआरपी में लिक्विडेशन में सब सेम टू सेम चलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन होना है विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट रिसीट ऑफ क्लेम्स, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। एंड ए क्रेडिटर में अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो यहां पर भी है कि ये भी अपील भी कर सकते हैं टू द एडजुडिकेटिंग। अगर मान लो लिक्विडेटर ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो अपील का राइट तो आएगा ना। तो पहली बार यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आई, अपॉइंटमेंट वगैरह के टाइम पे नहीं बताया। अगर किसी लिक्विडेटर ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो क्रेडिटर अपील कर सकता है। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनानी है विद इन 45 days फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स, provided that where no claim from creditors has been received till the last date for receipt of claims, the liquidator shall prepare the list of stakeholders within 15 days from the last date for receipt of claims। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर कोई क्लेम क्रेडिटर से आया ही नहीं टिल द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स, तो लिक्विडेटर क्या करेगा? शेल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स विद इन 15 days फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। नॉर्मली कितने दिन में करनी है? विद इन 45 days फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। लेकिन अगर मान लो किसी क्रेडिटर का कोई क्लेम ही नहीं आया तो फिर उसमें 15 days है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। मतलब बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है अगर कोई डेट फ्री कंपनी है तो क्लेम तो आएगा नहीं, है ना। तो अगर डेट फ्री कंपनी है तो उस केस में इसको विद इन 15 days फ्रॉम द लास्ट। अगर आप आपसे ये सवाल पूछ ले, मान लीजिए एक कंपनी इज डेट फ्री कंपनी, तो क्या उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है? तो क्या कहोगे आप, करनी है नहीं करनी? एक डेट फ्री कंपनी है, करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ अच्छा शेयर होल्डर अपना क्लेम सबमिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्या लिखता है? स्टेक होल्डर्स। सीआईआरपी में क्या होता है? सीआईआरपी में शेयर होल्डर अपना क्लेम सबमिट नहीं करते, लिक्विडेशन में करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी है, क्योंकि स्टेक होल्डर की डेफिनेशन दे रखी है आपको। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आप पढ़ो। स्टेक होल्डर की क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है, स्टेक होल्डर्स मीन स्टेक होल्डर्स एंटाइटल्ड टू प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स अंडर सेक्शन 53। तो 53 का रेफरेंस मतलब 53 में तो शेयर होल्डर को भी मिलता है। ये हो गया सारा। The list of stakeholders as modified from time to time shall be available for inspection by the persons who submitted proof, available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate person, displayed on the website if any of the corporate person, displayed on the website if any, designated by the board for this purpose. Manner of sale, अब जो हम नॉर्मल लिक्विडेशन देखते हैं उसमें क्या कहता है कि भाई स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी विल एडवाइज, है ना, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत होती है। यहां पर क्या है? द लिक्विडेटर मे वैल्यू एंड सेल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इन द मैनर एंड मोड अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेट पर्सन। कौन अप्रूव कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन।
in compliance with provisions, if any, in the applicable statute. Explanation: assets include an assets, all asset, a set of assets or parcel of assets as the case may be in relation to sale of assets. Recovery of money is due. ठीक है, ये टाइमली इनको रियलाइज करना है. The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate person in a time bound manner. अच्छा, मान लीजिए इसका पहली बात तो टाइम पीरियड कितना है, कितने दिन में वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट करना है. 1 साल में। ये देखिए, इसमें 2 पीरियड है. एक तो है 270 दिन. The liquidator shall endeavor to complete the liquidation process of the corporate person and submit the final report under regulation 38 within 270 days from the liquidation commencement date where the creditors have approved the resolution. इसका मतलब अगर क्रेडिटर हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन, इसका मतलब डेट है कंपनी में. अगर डेट है तो 270 डेज है और 90 डेज है फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट इन ऑल अदर केसेस. मतलब अगर डेट फ्री कंपनी है तो 90 डेज. ठीक है. इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स, लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करता है तो क्या करना है, क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाना है? नो, दे हैव टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन. एक मीटिंग होगी कंट्रीब्यूटरीज की विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ 12 months फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट एंड द एंड ऑफ एवरी सक्सीडिंग 12 months टिल डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन. ठीक है. And shall present an annual status report indicating progress in liquidation, including settlement of list of stakeholders, details of any assets, distribution made to the stakeholders. ठीक है. सर ये इस बुक में 37 जो आपका है वो अपडेटेड है या शायद, कि जो इसमें नहीं है वो 270 डेज, इसमें ओनली 12 मंथ लिखा है. किसमें? बुक में तो ऐसा है सर. एक मिनट मैं अभी जरा कंफर्म कर देता हूँ. देखिए, वॉलंटरी लिक्विडेशन में देखो, ये जो 270 डेज है ना, ये पता कब अमेंडमेंट हुआ? ये अमेंडमेंट हुआ है आपका 5/4/2022 को. तो ये तो हमारे सिलेबस में है. इससे पहले क्या था? इससे पहले विद इन 12 मंथ्स था. 5/4/22 को ये अमेंडमेंट आई है. 270 डेज. आप कहां से पढ़ते हो? बुक से सर, बुक क्या तो बुक में क्या लिखा है? इसमें ओनली 12 मंथ एक लाइन में लिखा है बस वो. तो ये बुक कौन से साल की है आपकी? विच ईयर? ये 23 के सर. 23 की है. नहीं, कब तक की अमेंडमेंट है इसके अंदर? कमर्शियल है बुक? कौन सी बुक है? तो कमर्शियल है. अपडेटेड अप टू क्या लिखा है? अपडेटेड अप टू, जो इसका कवर पेज देखिए. 15/6/23 ना, इशूड अप टू 15/6/23. पता नहीं भैया, मेरे हिसाब से तो ये अमेंडमेंट हो चुकी है. आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लेना. मैं तो जी आपको सर. नोटिफिकेशन नंबर बता सकता हूँ. आईबीबीआई का नोटिफिकेशन नंबर है ठीक है सर, 54. देख लेते हैं सर. उससे पहले 12 मंथ्स था, उसके बाद में ये आ गया 270. बाकी ग्रुप में लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यही है. अच्छा. मैंने आईबीबीआई से डाउनलोड किया है ये. ठीक है जी. तो 2 टाइमलाइंस हैं. 90 डेज है अगर क्रेडिटर नहीं है, अगर क्रेडिटर है तो 270 डेज. उसके बाद में मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज होगी. ये नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, ये देखो ना नीचे लिखा हुआ. फाइनल रिपोर्ट. When the liquidation is complete, the liquidator shall prepare the final report. All monies, अच्छा, liquidator to realize uncalled capital, ये हम पढ़ ही चुके हैं. सेम ही है उसमें भी, इसमें कोई फर्क नहीं है. अब 5,000 यूज टू कीप. जरूरी है कि जाने 4 से 7 से 8 लग जाता है तो 8 से 9 लग जाता है. ये भी हो गया. फाइनल रिपोर्ट. The liquidator shall prepare the final report consisting of audited accounts of the liquidation.
showing receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date. A statement demonstrating that the assets of the corporate person has been disposed of, the debt of the corporate person has been discharged to the satisfaction of the creditors, no litigation is pending against the corporate person, or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from any pending litigation. मतलब there could be a situation where you are finalizing the liquidation process, but still litigation is pending. तो उस केस में क्या करोगे? यू विल फासन दी पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। वो नॉर्मली क्या होता है, पर्सनल लाइबिलिटी ले लेते हैं कि भैया अगर कोई पेमेंट करनी पड़ी हमें लिटिगेशन की वजह से तो वो हम खुद करेंगे। ठीक है, सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड। ए सेल स्टेटमेंट in respect of all assets containing the realized value, cost of realization, manner and mode of sale, explanation for shortfall, person to whom the sale is made, any other relevant details। और इस फाइनल रिपोर्ट की कॉपी किसको भेजनी है? रजिस्ट्रार और बोर्ड को। ठीक है, और ये कॉपी तो आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी देनी है। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म H विद द एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट है एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इंसॉल्वेंसी। तो ये रेगुलेशन 40 इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 40 क्या होता है कि अगर लिक्विडेटर को कभी भी लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, वेयर द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द लिक्विडेशन इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड ए पर्सन, ही शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू सस्पेंड द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। क्योंकि नॉर्मली तो कॉर्पोरेट पर्सन ही सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। वही मीटिंग्स वगैरह कर रहा है, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट भी वही कर रहा है, रिप्लेसमेंट भी वही कर रहा है, मोड ऑफ सेल वगैरह वही बता रहा है, सब कुछ चीजें वही कर रहा है। एक्सटेंशन जो लिक्विडेशन प्रोसेस की है वो भी वही कर रहा है ना। लेकिन अगर इनको लगता है लिक्विडेटर को कि दैट लिक्विडेशन इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड ए पर्सन, ही शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। या दो सिचुएशन, पहला बात इट इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड ए पर्सन, सेकंड where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation। दूसरे में दो सिचुएशन, या तो फ्रॉड या फिर पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या कहेगा? टू सस्पेंड द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड पास सच ऑर्डर्स एज इट डीम्स फिट। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखनी है फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 8 years, फिजिकल कॉपी रखनी है 3 years। ठीक है, तो इतना ही है ये। बाकी तो फिर शेड्यूल आ गया इसका। बाकी कल इसके हम क्या करेंगे कि कुछ केस स्टडीज भी कर लेंगे। अब आप ये देखो ना, ये इसमें वो भी तो दे रखी है नीचे टाइमलाइंस। टाइमलाइन में भी T+90 और 270 दे रखा है। ठीक है जी, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल करेंगे फिर, कल केस स्टडीज कर लेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन वाली, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा केस स्टडीज, है ना। तब तक आप देख लीजिए। ओके जी, गुड नाइट। Good morning.